Good morning, class 8 students. In our first video yesterday, we have discussed about the definition of science, introductory portion of crop production and management, crop types, different varieties of crops, and what are the seasonal based rotational crops, Kharif, Rabi, Jaid and their examples. Our next topic is what are agriculture practices. Agriculture practices are the set of activities in a sequential manner to produce certain type of crop. When we use step-by-step process in a systematic way in a definite time period, over a certain time period, it becomes a agriculture practice. Agriculture practice consists of 7 basic steps, which are as follows, written in your green board. First is preparation of soil. It consists of 2 sub-methods or sub-processes in it. First is plowing, second is leveling. The plowing is done by the plow, hoe or cultivators. Then after leveling can be done with the help of wooden plank and or iron leveler. Now next and our most important step is selection and sowing seeds. Without this step, the fundamental of the agriculture is not possible. It is the foundation of any crop production. So without seeds, we can't able to grow any kind of plant or any kind of crop. Third one is manuring and fertilizers. Manures and fertilizers are those materials which provide nutrients, which enhance the power of soil to give the nutrients to the plants. Actually, plant gets all the nutrients from the soil, water from the soil. So adding manure and fertilizers as per the soil need, as per the crop need, we enhance the quality of the soil, we make soil capable to produce a crop in a with higher production rate. Now next is irrigation. Water supply to our farm is basic need. Without water, any living organism can't survive. So our plant, our crop will not also be capable to survive without water. Water is a basic need for all the living organisms, which are, whether it is animals, whether it is human, whether it is crop, animal. So with a different traditional and technical or technological method, there are multiples of ways to doing irrigation and produce or supply the water into the field. So that particular matter or that particular phenomena is known as irrigation. Now crop protection. Every child, every small baby, whether it is of animal, it is of human or plant, everyone wants protection from its outermost hunters or harmful factors which can affect, which can reduce the growth of any
object or subject. So crop protection means giving protection, providing defense to any crop by the different methods. Now next is harvesting. Harvesting consists of over a time period when our crop is ready to cut, ready to have in our godowns, ready to be packaging, ready to be eat. Before that, some processes have to be done, have to be performed to separate husk and our seeds from that particular plant. So that cutting and threshing are the sub methods of harvesting. Then after comfortable and secured storage of that particular crops is the basic need, so that we can store our food for a long time of period. Here 7 basic steps have been discussed, and now we will start discussing these 7 methods in a deep way, in a descriptive way. So first method is preparation of soil. What is preparation of soil? Preparation of soil is the basic method and the first set of activities done to grow the crop. First is preparation of soil. Now, coming to the Hindi, to enhance the understanding of students, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो स्टेप्स हैं, सेट ऑफ स्टेप्स हैं, वो रूल्स हैं जिनको किसी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम एक निश्चित समय अंतराल में नियमों के अनुसार उसे फॉलो करते हैं और उसे क्रियान्वित भी करते हैं। उसे हमें परफॉर्म करना पड़ता है, उसे हम रेगुलर बेसिस पे हमें एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है अपने उस सर्टेन एरिया में जहां पे हम क्रॉप प्रोडक्शन चाहते हैं। अब ये 7 होते हैं। 7 मेथड में जो पहला 7 एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि एक ओवर द लॉन्ग टाइम चलती रहती है, इसमें जो पहला है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये हुआ कि हमें अपने खेत की मिट्टी की प्रिपरेशन करनी है, मतलब किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए उसे तैयार करना है। अब वो तैयार कैसे होगी, किन मेथड से होगी, किन टूल्स से होगी, टाइमिंग क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज है, ये हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड वाज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अच्छे बीजों का चयन करना, उन्हें खोजना, ढूंढना, सेलेक्ट करना, ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है या नहीं है, कितना अमाउंट लगेगा, कितनी डिस्टेंस में सीड्स को हमको सोइंग करना, उसको बोना है खेत में, और कितने मेथड्स से उसको बोया जाता है, कौन कौन से टेक्निकल टूल्स उसमें यूज होते हैं, ये हम सेकेंड वाले में पढ़ेंगे। थर्ड में है मैन्योरिंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू अवर क्रॉप और टू अवर सॉइल ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्म। किसी खेत में जो हम खाद या जो भी उर्वरक हम मिलाते हैं, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स उसको ऐड करते हैं, वो कितनी मात्रा में और कैसे मिलाना होगा, कौन कौन से उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए या कौन कौन से उसमें केमिकल्स होने चाहिए, ताकि आपकी सॉइल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू
नाउ थर्ड इज इरिगेशन. इरिगेशन इन हिंदी इज कॉल्ड सिंचाई. बहुत सारे मेथड जो कि ट्रेडिशनल है और नए एडवांस्ड कुछ मेथड आ गए हैं जिनसे हम इरिगेशन कर रहे हैं, पानी भी बचा रहे हैं. पुराने मेथड में समय लगता था, हार्डवर्क ज़्यादा होता था, लेबर ज़्यादा लगती थी. तो नए वाले में हमने उसे रिड्यूस किया है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं हम ज़्यादातर. तो ये इरिगेशन के डिफरेंट टाइप्स के टूल्स और जो मेथड्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं. और नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन. फसल को सुरक्षा देना. सुरक्षा देने का मतलब यह है उसका बाउंड्री हमने वॉल किया, उसमें वीडीसाइड हम ऐड करेंगे. उनकी जो खरपतवार है वो उसमें ज़्यादा ना बढ़े, ताकि जो हमारे मेन क्रॉप है, जो फार्म में हम जिसके लिए ऑब्जेक्ट है हमारा, हम उसको पूरी तरीके से सुरक्षा दे सकें. और सुरक्षा देने के साथ में हम अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकें, ताकि हमने जो मैन्योर और जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं इसके पहले वाले स्टेप में अपने फार्म में, उससे किसी और पौधों को जो कि हार्मफुल है हमारे फार्म में लगे हुए और हार्मफुल है अपनी मेन क्रॉप के लिए, उसके लिए जो उसके मतलब उनको हम खत्म कर सकें वीड्स मिला के, वीडीसाइड्स मिला के, जो कि खरपतवार वगैरह है. नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मतलब जब आपकी फसल पक जाती है और 3-4 महीने का समय उसमें जो भी अपना उसका सेट ऑफ टाइम होता है वो पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो उसकी कटाई करनी होती है. कटाई करने के बाद में हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दो फैक्टर्स होते हैं. थ्रेसिंग में भूसा और वो जो बीज होता है उसके अंदर का दाना, अनाज का दाना, वो हम अलग करते हैं. भूसे का उपयोग जानवर इत्यादि के लिए किया जाता है. और नेक्स्ट है स्टोरेज. उसका संग्रहण करना, उसको सुरक्षित तरीके से हम कहीं इकट्ठा करके रख सकते हैं. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय 2 बेसिक वेज. First is plowing, next is leveling. Tilling or loosening up of a soil. Tilling and loosening up of soil to enhance the gathering power of that particular soil is called plowing. In Hindi it is called जुताई. It can be done by some basic tools which can dig a regular hole or which are able to dig and change the layers of that particular soil, ups and downs. So it is called plowing, jutai. It can be done by plow, hoe and cultivator. अब जुताई का क्या है? किसी भी टूल जो कि मिट्टी की निचली सतह को, लोअर साइड को, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर कर दे, ऊपर वाले को नीचे मतलब उसको पलट दे, उसको हम बोलते हैं जुताई करना. अब ये जुताई 3 तरीके से हो सकती है, 3 तरीके की टूल्स से होती है एक फॉर्म में. यदि आपके पास छोटा मोटा बगीचा है, if you have a small kind of garden, you can use sickle type of any sharp object to change or rotate your soil. आप छोटा मोटा कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई भी नुकीला रॉड का, लोहे का बना हुआ आप टूल यूज कीजिए, ताकि आप उसको गड्ढा करें और मिट्टी ऊपर नीचे हाथ से थोड़ा बहुत कर दें. आपके पास कोई गमले में लगा हुआ पौधा है तो आप उसे भी छोटे मोटे किसी टूल से या किसी औजार से आप उसको, खुरपी बोलते हैं उसे, खुरपी से आप उसे यूज कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड खुरपी. सो इन अ लार्ज स्केल व्हेन वी वांटेड टू प्लाउ आवर फील्ड, वी यूज प्लाउ, हल जिसे आप हिंदी में कहते हैं. ये भी एक प्रकार का है. होए का ये होता है, ये मिट्टी को लूज करने में
काफ़ी मदद करता है। ये भी एक तरीके का हल ही है, इसको लोहिया हल बोलते हैं अपने लोकल की लैंग्वेज में। थर्ड इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज कॉल्ड कल्टीवेटर इन हिंदी। ये ट्रैक्टर्स में मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लाउज लगे होते हैं लोहे के, और मशीन से जब इसको हम खेत को जोतते हैं तो उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। अब देखिए लेवलिंग। लेवलिंग मतलब समतल करना। समतल करना मतलब जो भी आपकी सॉइल है उसकी जो परत है खेत की, वो एक लेवल की होना चाहिए, एक ऊंचाई या एक नीचाई की होना चाहिए। इसके भी अलग अलग टूल्स है। इसमें एक आता है वुडन प्लैंक, और इसमें जो सेकंड है आपका वो होता है आयरन लेवलर। इसमें जो है ये फर्स्ट जो टूल होता है ये वुडन प्लैंक होता है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा और भारी सा गट्टा या टुकड़ा जिसपे लोग एक या दो लोग खड़े हो जाते हैं। कल्टीवेटर आगे चलता जाता है, उसके पीछे वुडन प्लैंक को रस्सों के माध्यम से बांध दिया जाता है और ये लेवल करते हुए चलता है पूरे खेत को। और जो मिट्टी के बड़े बड़े यूं कह लीजिए कि धोखे होते हैं उनको भी ये फोड़ते हुए आगे बढ़ता है। मिट्टी काफी हद तक भुरभुरी कर देता है, मिट्टी काफी हद तक पाउडर के शेप में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड है आयरन लेवलर। ये अलग अलग टाइप के आते हैं। हल्के आयरन के गोले, उसमें व्हील्स जैसे आपने रोड रोलर देखा होगा उस टाइप का भी आता है। और सेकेंड लेवलर के बाद में भी लगाने के लिए आता है जिसमें को हाथ से भी किया जा सकता है और मशीन से टच करा के भी उसको आप पाउडर के फॉर्म में मिट्टी को ये बैलेंस करते हुए चलता है और लेवल करते हुए चलता है अपने वजन के कारण। तो ये हो गया प्लाउइंग। अब प्लाउ हल जो कि बैलों में लगता था, उसको आपने देखा होगा ऐसा एक में डंडा होता है, ये ऐसा, ये उसका शेप ये ऐसा नुकीला सा होता है। ये हिस्सा इसका आयरन कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन के बने होने के कारण ये काफी मजबूत डंडा होता है जिसे हम जो है साफ्ट बोलते हैं, प्लाउ साफ्ट बोलते हैं इस हिस्से को, और इसे बोलते हैं इसको हैंडल। और ये वाला आपका प्लाउ शेयर कहलाता है, नीचे वाला नुकीला हिस्सा। तो बैल, दो बैल की जो जोड़ी है उसमें इस हिस्से को फिट कर दिया जाता है बीच में, और कोई एक आदमी इसको दबा के थोड़ा सा चलता है और ये मिट्टी को आपकी प्लाउ करता जाता है। ये देसी और ट्रेडिशनल टूल था। कोई जो है ये भी लकड़ी का बना हुआ है, इसमें एक आयरन का ब्लेड होता है नीचे, और ये मिट्टी को उलट पुलट करने के बड़े जो है काम में आता है। तो नीचे की 7 से 8, 10, 12 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है वो इसके द्वारा कवर की जाती है। कल्टीवेटर आप सभी ने ट्रैक्टर्स में लगा हुआ देखा होगा। कल्टीवेटर ट्रैक्टर्स में मल्टीपल प्लाउ लगे होते हैं। अब मल्टीपल 12-15 जो प्लाउ है, काफी 5 फीट लगभग 4 फीट 5 फीट का एरिया कवर करते हुए ट्रैक्टर स्पीड से आगे बढ़ता है और मिट्टी को काफी मात्रा में तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। उसी की लेवलिंग करने के लिए उस कल्टीवेटर के पीछे वुडन प्लैंक को बांधकर जब हम चलाते हैं तो जो मिट्टी के बड़े ढोके होंगे, जो मिट्टी के बड़े का रूप होगा, वो वुडन प्लैंक से टूटता जाता है। और फिर मैंने आयरन लेवलर का भी आपको उपयोग बता दिया। आज हम इतना ही, जो फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और इनके 7 मेथड्स, इतना ही डिस्कस करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो सिलेक्शन ऑफ